Hello students. Hi, Ashutosh here. I'm sorry for joining a bit late, but I've been preparing for this class. So, as we all know, this class is from within 3 to 5 p.m. So, my apologies for joining late, but we will start this class soon. So, if you have any more friends who are waiting to join this call, this link is open to everyone. Please ask them to join. We will start in a few minutes. Okay? Let me prepare these slides and the recording for this class today. And then I will formally introduce myself as well as all other students, and then we can begin this class, right? Yeah, I think we are ready to start the class. So I welcome you all to this course, Forest and Management. My name is Ashutosh Behra, and I'm one of the TAs for this course. So we are here for a problem solving session on lecture week 2 today. So those who have joined this course, those who are new to this course and those who have attended my previous class, I want to let you know the general set of instructions I have maintained for this class. This will be a problem solving session in which we will solve some old assignment multiple choice questions which are very similar to what you will be facing in your assignments as well as your quizzes. So I have prepared an array of 10 multiple choice questions for you guys from the pertaining lecture week, which is lecture week 2 today. So where Professor Ankur Avadhya, the instructor for this course, is talking about silviculture, ecological succession and the plant growth factors, right? So these three lectures, I hope you have been going through these lectures. We will understand some of the basic concepts through these multiple choice questions in this class and try to solve this together. Okay? Is everyone able to hear me and see me clearly? So this will be an interactive class, but I would request everyone to please turn off your video and your chat box. Turn off your video and your mic and interact with me via the chat box. So you can type your comments, your answers, and your queries, whatever you have for me and discussing with the class in the chat box. This is for the smooth conduction of this session because let me be the only mic that is speaking. So once I present my slide, I'll turn my video off, and then we can begin by general introduction and what this problem solving session holds. So I would request again all the participants to turn off your video and your mic during this whole session. We will interact with all of us and you will interact with me via the chat box. Okay? I hope you are able to listen and understand my voice clearly, and you can see my screen, my video. If yes, just let me know with a thumbs up or a yes or no with the chat box. Very good. Thanks, Preeti. So what I'll do now, I'll present my slides, and then we can begin this class. Okay. So let me just share my screen.
I apologize for being a little late. I was busy in a meeting and had to prepare for this class very quickly, right? So, nevertheless, I will not compromise on the quality of presentation that I'll be doing. Yes. Okay. Can you see my screen, guys? Can you see my screen? Just hit me with a thumbs up or a yes or no. Can you see the slides changing? Okay, very nice. There is a comment saying, Akshata, we aren't able to understand frequent English. Please speak in a bit of Hindi. Okay, I will try to, but Akshita, since this is an official medium, so the conversation medium will be in English. The questions that you are facing will be in English. I will try to speak English a little slowly. If you do not understand any question, if you are not able to understand, you can stop me anywhere and I will do it for you in Hindi. How is it? So, for all the students, if you are not able to understand any part of the question or you want me to change my language, then I will happily do it for you. Or you have any doubts, you mention it in the chat box. But the general mode of instruction will be in English because this is the official course and the language, right? Okay, I hope you follow. If you are not able to understand any question or any term, or I will repeat that in Hindi. Okay, let us start without any further delay. So, hi everyone, my name is Ashutosh. I'm the teaching assistant. I'm a PMRF scholar at IIT Kanpur, and as a part of PMRF mandate, we are collaborating with NPTEL to take problem solving and doubt solving sessions or course instructing sessions for these courses. So I have opted for Forest and their management. If you guys have attended my previous class, which was last Saturday, then we had covered 10 multiple choice questions pertaining to lecture week 1, where we had the introduction to forests and their management, definitions of forests, and the laws we encountered, and all those. So today we will be dealing with lecture week 2. We have 10 multiple choice questions which are similar to what you will face in your assignments, quizzes, and in the final exam as well. So if you have been going through these lectures, these questions will be an easy task. And while I post these questions for your answer, we will briefly understand about the concepts of these questions and thereby clear all our doubts moving ahead in this class. Okay. So without any further delay, let us see what is the first question for us. First question is, lithosphere is an example of dashed. Lithosphere is an example of dashed. Option 1, hydrosphere. Option 2, xerosphere. Option 3, samosphere. Option 4, halosphere, or ABCD. So what I expect you guys, please post your answers in the chat box. Okay, let me know what you think is the correct answer. Let us take a small time window of 30 seconds to 1 minute to collect all the answers in the chat box. For all the participants who are here, please post your answers in the chat box. No need to feel shy. You do not have to talk through your mic. You do not have to post on your video. You can just simply post your answers in the chat box. What is a lithosphere? And it is the best example of which of these? I can see there are already many answers. Sakshi, Preeti, Pratiksha, Shreyashi, Pranav, Rohan, Gauri, Prerna, Diksha, Siddhi, Prachi, Utkarsha, Kiran, Darshini, Anshu, and many more. So many people. Very nice. So looking at this participation is what you know encourages tutors or teachers to prepare more
slides and questions and do interactions. So please keep participating. It will keep the energy up for this class as well as your classmates, for me as well. Okay. So most of this class is unanimously agreeing with option B. Okay. Now let us see what is the correct answer to question 1. Lithosphere is an example of option B, xerosphere. Very good. Everyone has answered correctly. After option B, xerosphere is the correct answer. Now let us understand what is lithosphere. In ecology, what is a sphere? In ecology, a sphere is the sequence of communities that develop in a particular area over time during an ecological succession. Let me break this down for you guys. So, in an ecological succession, or in a process in which plants or animals colonize a totally new area, that is or the growth of the plants or the animals or the species community. Sphere is a sequence of communities that develop in that particular area. All the sequence of communities that arise throughout the period of ecological succession is a sphere. So a sphere is equal to all the intermediate stages from the first colonizers to the climax community. So in an area which is totally devoid of plants or animals, the first thing people that come in, or first species that colonizes, are known as first colonizers, and the final species that is there in the ecological succession is called the climax community. Now the sphere is a collection of all the intermediate stages of the communities it takes for an ecological succession. For example, after a volcanic eruption, there is no form of life that is alive after a volcanic eruption, because volcanic eruption occurs at very high temperature. There is magma and lava flowing around. It kills all organisms. So then what happens is there is an ecological succession. First comes up lichens, then there are mosses, grasses, shrubs, leading finally to trees. Though that area is finally populated with trees, all these stages together make up one sphere. For example, the volcanic eruption example that I said. And here is the example of primary succession, in which bare rocks are colonized by lichens. Then comes small plants and lichens replaced by grasses. Then comes the appearance of shrubs, and this happens over hundreds and hundreds of years. Ecological succession is a big time scale window. Now plant succession can be classified into various types, such as hydrosphere, based on where the succession actually starts. Hydrosphere succession starts in a region where water is plenty, for example inside ponds, inside lakes, streams or swamps. Mesosphere succession starts in region where the moisture condition is adequate or moderate. So high water content, hydrosphere; moderate or just adequate water conditions, mesosphere. And then comes xerosphere, which is the answer of this question. Succession starts in a region where moisture is present with minimal amount of water in it. So very dry or bare land, that is xerosphere. Mesosphere is a muddy or a moisture at adequate conditions, and hydrosphere is inside fully adequate ponds or lakes or water. Now xerosphere can be further classified into three types: lithosphere, initiating on a barren rock; halosphere, initiating in saline water where actually minimal amount of moisture is present; and samosphere, initiating on a sand or a dry based land, is samosphere. These are the types of or classification of plant succession. Now lithosphere is the correct answer, in which where the succession starts in a dry condition, bare rock or sand. Then comes lichens, which then colonize the bare rock. Then small plants, perennial grasses, which are further replaced by climax communities such as woody trees. Types of sphere based on starting condition: hydrosphere starts in water, halosphere starts in salty environments, and samosphere starts in dry sand and dunes. So this is an example of a dune, samosphere type of ecological succession, and this is a hydrarch or hydrosphere type of succession which starts within a pond. So lithosphere is an example of xerosphere. I hope everyone is clear on this question. Was it easy to understand? If yes, then let me know in the chat box with a thumbs up or a yes or no. And
And Akshita, were you able to follow the examples? Was my English too tough, or should I switch to Hindi? You can, so anyone who is facing any kind of difficulty, please mention it in the chat box and I'll be happy to revisit any kind of question. Okay? Hindi would be good, sir. Okay, Siddharth is saying. Okay, I'll try to switch between English and Hindi for from the next question onwards. Okay. So very good, good participation from the students. Let us look at what is the second question. Which of these depicts correctly the lithosphere primary succession? Okay, follow up of the second question. Which of these depicts correctly lithosphere primary succession? लिथोस्फीयर के प्राइमरी सक्सेशन में कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है? ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए, रॉक, क्रस्टोस लाइकन, फोलियोस लाइकन, मॉस, हर्बेशियस स्टेज, श्रब, वुडलैंड, क्लाइमैक्स. ऑप्शन बी, रॉक, फोलियोस लाइकन, क्रस्टोस लाइकन, मॉस, हर्बेशियस स्टेज, श्रब, वुडलैंड, क्लाइमैक्स. ऑप्शन सी, मॉस, क्रस्टोस लाइकन, फोलियोस लाइकन, रॉक, हर्बेशियस स्टेज, श्रब, वुडलैंड, क्लाइमैक्स. और ऑप्शन डी, रॉक, देन क्रस्टोस लाइकन, फोलियोस लाइकन, श्रब, हर्बेशियस स्टेज, मॉस, वुडलैंड, क्लाइमैक्स. ठीक है, तो आपको चार ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं. लिथोस्फीयर के एग्जाम्पल में जो हम पहले ही क्वेश्चन में थोड़ा डील कर चुके हैं, where we have dealt with what are the stages of lithosphere. Now the question asks what are the species and what is the order of succession in the lithosphere ecological environment. कौन सा order of succession यहाँ होगा? पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ऐसे ऐसे होके क्लाइमैक्स तक कैसे पहुँचेगा. Let's take 30 seconds to 1 minute. 30 seconds लेके हम ऑप्शंस का करेक्ट आंसर देखते हैं. पहले मैं चैट बॉक्स चेक कर लूँगा कि आपने क्या आंसर लिखा है. I can already see so many people answering. Sakshi, Pratiksha, Preeti, Supriya, Snehal, Siddhi, Niranjan, Anshu, Lot, Pranav, Prerna, Diksha, Saili, Kiran, अनुराग, लक्ष्मी, समृद्धि. वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं. इज़ माई हिंदी फाइन? बिकॉज आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी, बट आई ट्राई माई बेस्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट, सो द गोल ऑफ दिस क्लास या फिर इस क्लास का मकसद यही है कि आप लोगों को समझ में आए एंड आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो. सो आई वुड बी हैप्पी टू स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस. ओके, आई कैन सी दैट, मैं देख पा रहा हूँ कि सब ने ऑप्शन ए ऑलमोस्ट सिलेक्ट किया है. लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्या है करेक्ट आंसर, देखते हैं. विच ऑफ दीज डिपिक्ट्स करेक्टली द लिथोस्फीयर प्राइमरी सक्सेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. वेरी गुड, बहुत बहुत ही सही जवाब. सबने सही जवाब ही दिया है. तो ये है करेक्ट आंसर. पहले आता है रॉक. रॉक इज द फर्स्ट रॉक इज द फर्स्ट सरफेस ऑन विच देयर इज कॉलोनाइजेशन. रॉक के ऊपर आता है क्रस्टोस लाइकन, देन आता है फोलियोस लाइकन, देन आता है मॉस, फिर आता है हर्बेशियस स्टेज, श्रब, फिर आता है वुडलैंड एंड क्लाइमैक्स. ठीक है, तो ये है सक्सेशन. थोड़ा ब्रीफली समझते हैं इसको. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. A lithosphere is an ecological succession that begins or bare newly exposed rock surface such as cooled lava, rocky cliffs or glacially scraped surfaces. तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रख लें. लिथोस्फीयर में क्या 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 आता है. बेस्ट एग्जाम्पल है मैग्मा या वॉल्केनिक इरप्शन के बाद लावा जब कूल हो जाता है, वहाँ पर जब रॉक्स आते हैं, उन रॉक्स पे जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. ऑल्सो ग्लेशियर के बाद, मतलब आप समझ सकते हो पूरा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जहाँ पर कोई लाइफ बिगिन नहीं हो सकती, जहाँ मॉइस्चर भी नहीं है, लावा के नीचे कोई मॉइस्चर नहीं है, ग्लेशियर जब स्क्रेप करके जाता है तब भी कोई मॉइस्चर नहीं रहता है, तब लिथोस्फीयर का कंडीशन बनता है इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी सक्सेशन where hardy pioneer species like lichens and mosses gradually break down rock to form soil, allowing larger plants to colonize over time.
तो इसका मतलब है लाइकेंस एंड मॉसेस ही जनरली लिथोस्फीयर के कंडीशन में पायनियर स्पीशीज होते हैं. एंड व्हेन आई से पायनियर स्पीशीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसे स्पीशीज जो सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं ऑन बेयर रॉक्स. तो उनमें मोस्टली लाइकेंस एंड मॉसेस होते हैं बिकॉज इनका एक सिग्निफिकेंस भी है. तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअली रॉक को तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के उसको सॉइल बनाने में मदद करते हैं. लाइकेंस एंड मॉसेस के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रॉक्स को तोड़ के उसको सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं. एंड ये सॉइल फिर फाउंडेशन बनता है बड़े बड़े प्लांट्स के लिए जो सॉइल पे ग्रो कर सकते हैं बट रॉक पे नहीं ग्रो कर सकते. So if you look at a bare rock kind of a lithosphere succession, the first species that appears are the lichens. So पहला पहला ऑप्शन जो था रॉक के बाद क्रस्टोस लाइकन. क्रस्टोस लाइकन मतलब एकदम हार्ड वाला लाइकन जो रॉक पे ग्रो कर सकता है. देन आता है फोलियोज लाइकन. फोलियोज मतलब जिसका थोड़ा फोलिएज हो या फिर लीफ जैसा स्ट्रक्चर हो. स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड अदर लाइकन्स. सो इस सेक्शन में आएगा फोलियोज लाइकन. देन धीरे धीरे फोलियोज लाइकन से ऊपर उठते हैं विच इज़ ग्रासेस एंड हर्ब्स आ जाते हैं. सो देन ग्रासेस बड़े हो के श्रब्स थोड़े आते हैं, लाइक थोड़े से बड़े पेड़ बट ऐसे बुश जैसे पेड़, कांटेदार या थोड़े बुशी ऐसे पेड़ आते हैं. उसके बाद आते हैं शेड टॉलरेंट ट्रीज जो एकदम वुडी ट्रीज होते हैं, जो लंबा एंड बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो वाले आते हैं. और ये सक्सेशन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के थ्रू चलता है. सो की स्टेजेस ऑफ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का कितने की स्टेजेस हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और रजिस्टर हो जाए. पीपल हु आर ऑलरेडी adept with these terms or have gone through this or are already knowledgeable, please bear with me. For all those people who are new to this, मैं धीरे धीरे ही बताऊंगा. पायनियर स्टेजेस में लाइकेंस आते हैं लाइक क्रस्टोस लाइकेंस एंड साइनोबैक्टीरिया जो बेयर रॉक पे सिक्रीट करते हैं एसिड्स और रॉक को वेदर कर देते हैं या फिर रॉक को तोड़ने में हेल्प करते हैं. सो पहले आएगा लाइकेंस बेयर रॉक पे और मॉस भी आएगा. मॉस जो फिसलन भरी होती है और थिन सॉइल क्रिएट करेगा. यही होते हैं पायनियर स्पीशीज. देन आते हैं मॉस स्टेज आ गया. जब थोड़ा सा रॉक ब्रेक होके मिट्टी बन गया देन उस पे मॉस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ गया विच इज़ पॉलीट्राइकम. टेक ओवर ट्रैपिंग डस्ट एंड इम्प्रूविंग मॉइस्चर रिटेंशन. नहीं, अब जब मॉस आ गया तो मॉस फोटोसिंथेसिस करने लगे, फिर रेस्पिरेशन करने लगे, तो धीरे धीरे मॉइस्चर भी ज़्यादा अच्छे से ट्रैप होने लगा. फिर आता है हर्बेशियस स्टेज. जो छोटे छोटे हर्ब जैसे प्लांट होते हैं वो सॉइल पे आते हैं मॉस के आने के बाद. इंक्रीज्ड सॉइल डेप्थ अलाउज शैलो रूटेड हर्ब सच एज ग्रासेस एंड फर्न्स टू कॉलोनाइज. फर्न्स भी आते हैं और थोड़े ग्रासेस भी आते हैं. और फिर उसके बाद श्रब या वुडी स्टेज आता है. श्रब स्टेज में क्या होता है, ऐसे श्रबी प्लांट्स जिसमें बुशेस हों या फिर कांटेदार पेड़ हों जिनका लीफ इतना बड़ा नहीं होता, जिनका हाइट भी इतना बड़ा नहीं होता है, वैसे वाले प्लांट्स आते हैं. श्रब्स आते हैं और स्मॉल ट्रीज आते हैं. उसके बाद आता है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट जो लास्ट में बनता है या फाइनल उसमें बनता है जिसमें स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी आते हैं जैसे बर्च हो गया, ओक हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, जो वुडी और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो कैनोपी बनाते हैं, फाइनल स्टेज में आते हैं. सो की स्टेजेस ऑफ लिथोस्फीयर हमने देखा कि पहले आते हैं क्रस्टोज लाइकेंस, फिर आते हैं फोलियस लाइकेंस, फिर आते हैं मॉस, देन आते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड देन क्लाइमैक्स कम्युनिटी. आई होप एवरीवन वाज एबल टू अंडरस्टैंड. सबको समझ में आया. देन जस्ट लेट मी नो विद अ लाइक. आप लाइक या यस बोलिए, फिर मैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. वेरी गुड. Anushka has a comment. Where will our attendance be taken and where will it be shown? अनुष्का, मैं आपका अटेंडेंस तो नहीं ले रहा हूँ टी ए शिप क्लासेस में. आई डोंट नो इफ़ इट इज़ कंपलसरी फॉर यू गाइज टू अटेंड दिस क्लास. ये मोस्ट ऑफ ऐसे इंडिविजुअल प्रेफरेंस के बेसिस पे है. आई थिंक आप अटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. हाँ, अगर आपके कॉलेज के तरफ से इफ़ योर कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोवाइडेड कंपलसरी अटेंडेंस then you can confirm it with your institute authorities or NPTEL authorities. बट ये क्लास में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, जिसको पसंद है. और whoever wants to attend these classes they can, but I am definitely not taking your attendance. Okay, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3.
एट कॉम्पनसेशन पॉइंट व्हाट हैपन्स? कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन. ऑप्शन बी, photosynthesis greater than respiration. Option C, photosynthesis less than respiration. Option D, none of these. कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब क्या है? कौन सा इनमें से सही जवाब है? लेट्स टेक सम 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड ले लेते हैं, 1 मिनट ले लेते हैं. आप सब लोग अपना आंसर पोस्ट करिए, देन मैं चेक करूँगा कमेंट बॉक्स एंड फिर सही आंसर क्या है बता दूंगा. Okay, there is another comment by Anushka. Actually, we weren't able to understand because I am in between the sessions. Okay. आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है देन आई विल रीविजिट इट. हम क्लास के एंड में करेंगे. इफ़ क्वेश्चन नंबर 2 वाज योर पॉइंट वेर यू couldn't अंडरस्टैंड, तो मैं रिपीट कर दूंगा, बट आफ्टर वी फिनिश द क्लास, जब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच जाएंगे देन मैं अनुष्का या दूसरे लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर दूंगा इफ़ यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैपन्स एट कॉम्पनसेशन पॉइंट? कॉम्पनसेशन पॉइंट पे क्या होता है? And all the people who are joining this class right now, please turn off your mic and video chat. This is the mandate that I follow in all my classes. आप अपना mic and video off करिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए. You can interact with me through the chat box. मेरे साथ आप chat box में interaction कर सकते हैं. And multiple choice question मैं यहाँ post करूँगा. आपको उनके answers बताने हैं. Do not feel shy. आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है. आप बिना माइक एंड वीडियो चैट के भी अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं. ओके, आई थिंक दिट्स इनफ टाइम एंड आई कैन ऑलरेडी सी लॉट ऑफ आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. गौरी, साक्षी, प्राची, ओ माय गॉड, प्रीति, सो मेनी पीपल, प्रेरणा, अंकिता, सॉरी, सिद्धि, श्रेयसी, ओम, सायली, आशु, तनीषा, सुप्रिया, many people have answered option A. The list is long. Lakshmi, Nandini, Anurag, very good. So let us see what is the correct answer to question number 3. What happens at compensation point? Compensation point का मतलब क्या है? Correct answer is option A. आप लोग फिर से सही जवाब दिए हैं. Option A is known as the compensation point where photosynthesis equals respiration. जब photosynthesis का रेट respiration के रेट से बराबर हो जाता है तभी उसको compensation point बोलते हैं. And ये किस context में है? What is the context of this? This is in context of plant growth that we will understand. So let us understand what is the plant growth and what is compensation point. So photosynthesis and respiration are two processes that are complementary processes that determine the plant growth. Okay. So photosynthesis and respiration दो important चीज़ें हैं जो plant के growth को determine करता है. Photosynthesis क्या होता है? Photosynthesis produces glucose and oxygen using light, carbon dioxide and water primarily in leaves during the day, thereby increasing plant dry matter. तो photosynthesis क्या बनाता है? खाना बनाता है plants के लिए. So plants का खाना is glucose and oxygen बनाता है. As a byproduct, light, carbon dioxide and water को लेके glucose बनाता है and a byproduct oxygen. So photosynthesis acquires or assimilates energy. नेक्स्ट रेस्पिरेशन, वो क्या करता है? प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है. सो ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑकरिंग इन ऑल सेल्स. सो फोटोसिंथेसिस मेनली ग्रीन लीव्स में होता है जहाँ पर क्लोरोफिल होता है, वाइल रेस्पिरेशन हर सेल में होता है जब उसी स्टोर्ड एनर्जी को ब्रेक डाउन किया जाता है. सो ग्रोथ, जब प्लांट की ग्रोथ कब होती है? व्हेन इज द ग्रोथ हैपनिंग इन द प्लांट? Growth is net positive when photosynthesis exceeds respiration. जब इनकम से खर्चा बढ़ जाता है तब ग्रोथ नहीं होता है. So whenever the incoming energy or the photosynthesis is more than respiration, only then there will be net plant growth. So ये है इक्वेशन हमारा. 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O gives glucose plus oxygen, 6 oxygen. This is photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है. एंड
रेस्पिरेशन का इक्वेशन थोड़ा सा उल्टा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लेके हम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन मोस्टली रात में होता है एंड फोटोसिंथेसिस मोस्टली दिन में होता है जब सनलाइट प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन से एनर्जी एंड हीट पैदा होता है। So then again, very simple concepts, juggling between the both. Light energy harvested by photosynthesis to make glucose, uh, and then oxygen is also released as a matter. So white arrows is the photosynthesis. Oxygen is released as a matter of photosynthesis. Then respiration में क्या होता है, हीट एनर्जी निकलता है, डिसिपेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाइल ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंज्यूम हो जाते हैं। सो कॉम्पनसेशन पॉइंट बेसिकली करता क्या है, हमने सीखा कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की बैलेंस की वजह से प्लांट का ग्रोथ होता है, बट कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है? कॉम्पनसेशन पॉइंट इज अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन वेर अ प्लांट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली इक्वल्स इट्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा हमें लाइट इंटेंसिटी एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान देना होगा, बिकॉज कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या कह रहा है, ऐसा एक लाइट इंटेंसिटी जहाँ पर प्लांट का फोटोसिंथेसिस रेट और रेस्पिरेशन रेट दोनों सेम हो जाते हैं, वो है कॉम्पनसेशन पॉइंट। तो हमारे पास दो कॉम्पनसेशन पॉइंट होते हैं, एक लाइट इंटेंसिटी के दो कॉम्पनसेशन पॉइंट एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के दो कॉम्पनसेशन पॉइंट, because these two factors determine what is going to be the rate of photosynthesis and the rate of respiration. So इस equilibrium पे there is no net intake or release of carbon dioxide or oxygen, meaning the plant produces just enough glucose to survive but not for growth. तो इसका मतलब क्या है, photosynthesis and respiration दोनों को equilibrium में ले रहा है। It's not like none of the reactions are happening. Reactions happen होना बंद नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी चलता है एंड रेस्पिरेशन भी चलता है, बट उनका नेट जो नेट इनटेक या रिलीज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सो देयर इज नो नेट इनटेक और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सो अगर हम एक पैरामीटर का कॉम्पनसेशन पॉइंट देखें, इफ यू जस्ट टेक लाइट इंटेंसिटी एंड देन फाइंड आउट विच आर द कॉम्पनसेशन पॉइंट, देन कर्व में ये दिस कर्व वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड बाई प्रोफेसर अंकुर इन हिज लेक्चर सीरीज। इस कर्व में दो पॉइंट्स आएंगे जहां हम कॉम्पनसेशन पॉइंट बोलेंगे। सो ये नाइट टाइम है, ये डे टाइम है। द येलो वन इज द डे टाइम वाइल द ब्लू वन इज द नाइट टाइम। देन ऑन दिस वाई एक्सिस हियर depicts carbon dioxide uptake and CO2 प्रोडक्शन, एंड यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक जब हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक हो रहा है किस टाइम पे हो रहा है, डे टाइम पे हो रहा है, बिकॉज इट इज फोटोसिंथेसिस टाइम। डे टाइम देयर इज सनलाइट प्रेजेंट, देयर विल बी मोर फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस तभी होगा। तो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक होता है या प्लांट ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है। सो देन फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर देन रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन से जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी एक्सीड कर देता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक कर रहा है प्लांट्स। देन रात में क्या होता है, नाइट टाइम पे देर इज नो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक नहीं हो पाता है, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, बट सिंस अपटेक नहीं हो रहा है, द नेट मूवमेंट और द नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, रात में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है रेस्पिरेशन का। तो इन दोनों के बीच में लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट आता है एट अ पॉइंट वेयर फोटोसिंथेसिस इक्वल्स रेस्पिरेशन। सो द नेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और इनटेक जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट और एनी कॉम्पनसेशन पॉइंट। आई होप एवरीवन इज क्लियर, सिंस एवरीवन हैज़ आंसर्ड करेक्टली। आप लोगों ने सब सही जवाब दिया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। लेट मी चेक द चैट बॉक्स। आई थिंक समवन Roopjit says, how is it different from equilibrium then? So equilibrium actually means movement of the reaction. जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम के भी बहुत टाइप्स होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है कि कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, जो आपके प्रोडक्ट्स है, जो आपके रिएक्टेंट्स है, वो उसका क्वांटिटी सेम रहेगा, दैट इज इक्विलिब्रियम।
बट यहाँ हम जो कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन का मतलब रिएक्शन बंद नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन बंद हो गया है, किसी भी एक डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं मूव कर रहा है। कॉम्पनसेशन का मतलब है रिएक्शन दोनों मूव कर रहे हैं, बट इससे इनटेक जितना हो रहा है उससे अपटेक भी उतना हो रहा है। देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन पॉइंट। Lakshmi says, sir, please repeat this again. I didn't understand. So compensation point, again, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ in Hindi and as well as in English. So let us just focus on this. Daytime में क्या होता है? What happens in daytime? Daytime में photosynthesis ज़्यादा होता है. Agree with me? Agree with me, right? Because there is sunlight, और sunlight के presence में photosynthesis होगा. Sunlight के presence में कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक, मतलब प्लांट अपने अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। बाहर एटमॉस्फेयर में या आसपास जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट उसको अपने अंदर खींचता है, तो अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है। बट डे टाइम में रेस्पिरेशन भी होता रहता है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज हैपनिंग इन ऑल द सेल्स, जो सेल्स को एनर्जी देता है। डे टाइम में रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी मिल रहा है, विच इज़ दिस इक्वेशन। रेस्पिरेशन क्या बोल रहा है? 6 CO2 इज रिलीज्ड आउटसाइड। रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आ तो रहा है बाहर, बट उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने अंदर खींच रहा है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट इज वाई व्हेन वी प्लॉट दिस कर्व, ये कर्व ज़्यादा हो गया है, CO2 अपटेक यहाँ हो रहा है। बट देन नाइट टाइम में क्या होता है? जब हम रात में आते हैं, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, राइट? नीचे वाले उसको देखते हैं, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है बिकॉज देर इज नो सनलाइट। इफ देर इज नो सनलाइट, देर इज नो फोटोसिंथेसिस, हेंस देर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। अब प्लांट अपने अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा है, बट प्लांट का रेस्पिरेशन चालू है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो तब क्या होता है? नेट, अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करोगे एक प्लांट के आसपास, नेट फ्लो क्या हो रहा है? रात में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाता है, सॉरी, रात में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाता है और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई एक पॉइंट जो शाम को होता है, विच इज़ द लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। ये जो दो टाइम पॉइंट्स है, ये अर्ली मॉर्निंग जब थोड़ा सा सनलाइट कमज़ोर होता है, एंड देन इवनिंग के टाइम जब सनसेट हो रहा होता है, दोज पॉइंट्स आर द लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट, क्योंकि उस पॉइंट पे टोटल कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक इक्वल हो जाता है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का। उस पॉइंट्स को बोलते हैं लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। क्या इस बार समझ में आया? इज इट क्लियर नाउ, लक्ष्मी? आई सॉ लाइक फ्रॉम रूपजीत, आई थिंक ही लाइक द एक्सप्लेनेशन। Lakshmi and any other student who has any other doubt, if you want me to go through it again, अगर आपको चाहिए कि मैं ये रिपीट करूं तो मुझे बता सकते हैं। कॉम्पनसेशन पॉइंट डे टाइम में पूरे प्लांट के डे नाइट साइकिल में ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन होता है बेस्ड ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और रिलीज। उस पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और रिलीज दोनों इक्वल होते हैं, दोनों प्रोसेसेस साथ में चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी चल रहा होता है एंड रेस्पिरेशन भी चल रहा होता है। इफ एवरीवन अंडरस्टूड, देन प्लीज लेट मी नो विद अ लाइक और अ यस, then we can go to the next question. Okay, I hope Lakshmi has also understood. Let us move to the next question. Question number 4. The study of life history or general features of forest crops with respect to environmental factors is called dash. अगला सवाल नंबर 4. Study of life history general features of forest crops with respect to environmental factors is called dash. लाइफ हिस्ट्री और जनरल फीचर्स फॉरेस्ट क्रॉप का अगर हम स्टडी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? डेफिनेशन: ऑप्शन ए फॉरेस्टी कल्चर, ऑप्शन बी मोनोकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वी कल्चर, ऑप्शन डी सिल्विक्स। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आई एम फ्रीक्वेंटली स्विचिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश so that upon request of the students. Anyway, you can see the question displayed on the presentation. Please post your answers in the chat box. आप मुझे answers बता दीजिए in the comment box. ABCD आप लिख सकते हैं. Let us take 30 seconds and फिर मैं correct answer आपको बता दूंगा.
कि कौन सा है करेक्ट आंसर, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेरी प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स तो काफ़ी तेज़ आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले होते ही 2-3 सेकंड में ही मुझे कमेंट्स में आंसर्स दिख जाते हैं, बट लेट अस वेट फॉर ऑल द पीपल टू आंसर। I can see lot of answer: Pratiksha, Siddhi, Prerna, Saili, Gauri, Niranjan, Diksha, Supriya, Amruta, Darshini, Tejasri, Om, Kiran, Onkar, Ruturaj। वेरी नाइस, पार्टिसिपेशन तो फुल है क्लास में, बहुत अच्छी बात है। क्षितिजा, धनश्री, तृप्ति, उत्कर्षा। ओके, सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर, सबने जवाब दे ही दिया है, तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री और जनरल फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स with respect to environmental factors is called option D, सिल्विक्स। ऑप्शन डी सिल्विक्स सही जवाब है, एंड ऑलमोस्ट सभी ने क्लास में सब ने सही जवाब दिया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो इन सब टर्म्स का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिल्विक्स, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में क्या डिफरेंस है और सिल्विक्स में क्या डिफरेंस है, और इनका मतलब क्या होता है। तो सिल्विक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी of the life history, ecology and characteristics of forest trees and stands, focusing on how they interact with their environment। तो एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें किस टाइप के पेड़ उग रहे हैं, किस टाइप का वेजिटेशन है, उसका हिस्ट्री क्या है, कितने पुराने हैं, उनका इकोलॉजी क्या है, और फॉरेस्ट ट्रीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब का स्टडी होता है सिल्विक्स। बिकॉज सिल्वा मीन्स वुड एंड सिल्विक्स मीन्स उनका हिस्ट्री और उनका एनवायरमेंट से क्या रिलेशन है, वो किस टाइप के पेड़ हैं, कितने पुराने हैं, कौन कौन से वेजिटेशन उस एरिया में आते हैं, इन सब का नॉलेज या इन सब का स्टडी को बोलते हैं सिल्विक्स। इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड क्रॉप्स और स्टैंड्स, फोकसिंग ऑन हाउ दे इंटरैक्ट विद देयर एनवायरमेंट। तो इस नॉलेज को बोलते हैं सिल्विक्स। It covers a species, habitat, growth patterns, reproduction, tolerance to environmental factors, serving as the biological foundation of silviculture। तो क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं या देखते हैं। स्पीशीज का हैबिटाट क्या है, कि कौन से स्पीशीज कौन से एरिया में पाए जाते हैं। ग्रोथ पैटर्न क्या है, कितना जल्दी ग्रोथ होता है, कितना हाइट तक ग्रो होता है, क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसका। रिप्रोडक्शन पैटर्न क्या है, क्या वो विंड पॉलिनेशन करता है, क्या वो वाटर पॉलिनेशन करता है, कितने दूर तक उसके स्पोर्स जाते हैं, उसका उसके आसपास कितने उसके प्रोजेनी या सैपलिंग्स लगे हैं। टॉलरेंस कितना है, ड्रॉट, फायर और रेनफॉल एंड हीट में कितना टॉलरेंस है, ये सब भी हम सिल्विक्स में स्टडी करते हैं। सो दिस सिल्विक्स फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर सिल्विकल्चर विच इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। एंड सिल्विकल्चर क्या है, जब हम सिल्विक्स को अप्लाई करते हैं टू मैनेज द फॉरेस्ट टू प्रोड्यूस मोर वुड। सो सिल्विकल्चर इज़ बेसिकली अ ह्यूमन सेंट्रिक स्टडी। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी या वुड जनरेट करने के लिए सिल्विक्स का उपयोग करते हैं तो उसको सिल्विकल्चर बोलते हैं। सो सिल्विक्स इज़ द हिस्ट्री, जोग्राफी एंड बायोलॉजी ऑफ ऑल द फॉरेस्ट। सिल्विकल्चर इज अप्लाइड सिल्विक्स फॉर आवर ओन बेनिफिट फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। सो एक एग्जाम्पल देते हैं सिल्विक्स का। एक एग्जाम्पल हियर, रेड पाइन ट्री का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सिल्विक्स में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। द सिल्विकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्री स्पीशीज इंक्लूड हैबिटेट एंड फेवर्ड ग्रोइंग साइट्स, नेटिव रेंज, वो नेचुरली कहाँ पर ग्रो कर रहा है, एवरेज मैच्योर ट्री डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसका ट्री डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कितना है, कितना उसका मोटापा है, कितना उसका लंबाई है, कितना डेवलपमेंट है, कितना मैच्योर है वो, क्या ये नया ट्री है, उसका एजिंग कितना है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, कितना देर तक वो जिंदा रहता है, क्या ये 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, या कितना पुराना है। शेड टॉलरेंस, रूटिंग, रिप्रोडक्शन, रिएक्शन टू कंपटीशन, अगर ऐसे दूसरे स्पीशीज़ आ जाएं या इसके आसपास के स्पीशीज़ आ जाएं तो कितना अच्छा ये कंपटीशन में फेयर करता है। एंड व्हाट आर द एसोसिएटेड स्पीशीज़ एंड फॉरेस्ट कवर, व्हाट आर द डैमेजिंग एजेंट्स, एंड सबसे अहम बात यूजेस, इसके उपयोग क्या है या फिर इसका फ़ायदा क्या है, ये जो ट्री ग्रो कर रहा है। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड इन सिल्विक्स। फॉर एग्जाम्पल सिल्विक्स ऑफ रेड पाइन, उसका कॉमन नेम क्या है, नॉर्वे पाइन और बुल पाइन।
आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, हैज़ द लॉन्गेस्ट नीडल्स ऑफ पाइन्स विथ 2 नीडल्स पर क्लस्टर्स, नीडल्स ब्रेक इनटू 2 व्हेन बेंट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप एक फॉरेस्ट या एक एरिया में रेड पाइन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एवरेज एज क्या होता है, एवरेज हाइट क्या होता है, ये सब डिटेल्स होते हैं सिल्विक्स ऑफ दिस ट्री। इन सब को बोलते हैं सिल्विक्स। एंड जब हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं टू गेट मोर वुड आउट ऑफ द रेड पाइन ट्री, दैट इज सिल्विकल्चर। सो रूटिंग कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, ये पूरा लिस्ट है। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि सिल्विक्स एंड सिल्विकल्चर में क्या डिफरेंस होता है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर द स्टूडेंट्स। ये काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है बट कभी कभी कंफ्यूजिंग लग सकता है। इफ़ इट इज़ क्लियर टू द स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया देन गिव मी अ लाइक और अ येस इन द कमेंट बॉक्स। हम आगे बढ़ सकते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, ओके। आई एम हैप्पी कि सब लोगों को समझ में आ रहा है एंड एवरीवन इज विथ मी, everyone is able to understand the slides and the concepts. Let us move on to the fifth question. Fifth question is here. A climax caused by wildfires is an example of dash. एक ऐसा क्लाइमैक्स जो वाइल्ड फायर से बना है, वैसे क्लाइमैक्स को क्या बोलेंगे हम? कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी एडोफिक क्लाइमैक्स, ऑप्शन सी डिस क्लाइमैक्स, ऑप्शन डी कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स। कौन से क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है वाइल्ड फायर से क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनना? अगर आपने लेक्चर्स थोड़े से भी ब्राउज भी किए हैं देन आपको ये बात पता चलेगी, क्योंकि प्रोफेसर अंकुर ने इसे काफ़ी कवर किया है। इफ़ यू हैव ब्राउज थ्रू योर लेक्चर्स ब्रिस्कली यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। वाइल्ड फायर, इवन आपको टर्मिनोलॉजी से भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो सकता है कि ये किस टाइप ऑफ क्लाइमैक्स है। ओके, लेट अस टेक 30 सेकेंड्स एंड कलेक्ट आंसर्स इन द चैट बॉक्स। आप अपना आंसर्स चैट बॉक्स में पोस्ट करिए। मैं आपको सही आंसर 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद बता दूंगा। वाइल्ड फायर से जो क्लाइमैक्स बनता है ऑप्शन वो सी। किस चीज का एग्जाम्पल है? So all those students who have joined recently, all those students who have joined recently, please turn off your mic and video chat for this class. आप अपना आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स। आई यूजुअली फॉलो दिस फॉर्मेट बिकॉज otherwise it would be too chaotic if many mics are on and they are speaking. So let me be the only person with the mic on and please post your answers in the chat box. आप मेरे साथ कम्युनिकेशन चैट बॉक्स में कर सकते हैं। अपना माइक एंड वीडियो चैट ऑफ रखिए। ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू रिवील व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर देखते हैं क्या है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने मिक्स्ड आंसर्स दिए हैं इस बार। सम पीपल हैव आंसर्ड ऑप्शन सी, सम हैव आंसर्ड ऑप्शन डी। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी पे अटके हैं। साक्षी से सी, साइली से डी, प्रेरणा सी, सुप्रिया सी, गौरी से डी, प्रणव सी, गौरी, सिद्धार्थ, प्रिया, विनय, किरण, लॉट्स ऑफ पीपल। सो हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए हैं, एक ग्रुप बोल रहा है सी और दूसरा ग्रुप बोल रहा है डी। देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अ क्लाइमैक्स कॉज्ड बाय वाइल्ड फायर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन डी कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव आंसर्ड ऑप्शन डी, वेल डन, आपका आंसर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड फायर इज अ टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफ, तो इससे जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स। ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर। हम आगे देखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमैक्स। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज द फाइनल स्टेबल स्टेज ऑफ सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम डिफाइंड बाय अ बैलेंस विथ एनवायरमेंटल कंडीशन। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल और फाइनल स्टेज होता है एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सो हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि पायनियर कम्युनिटी क्या होता है, जो बिल्कुल भी नए जगह पे जहाँ वेजिटेशन ला सकता है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। बट क्लाइमैक्स उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो सबसे फाइनल और लास्ट स्टेज होता है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एंड बहुत स्टेबल होता है, डिफाइंड बाय अ बैलेंस विद एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर इसको ऐसे ही रहने दे
तो ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी उसी एरिया पे अपना वेजिटेशन बनाए रखता है. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी के कुछ गिने चुने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. दिस इज द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी. ये बहुत स्टेबल होता है. जनरली रिमेन्स सेम इफ अनडिस्टर्ब. इसको अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो ये सेम ही रहता है. इसको और आगे इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होता है. टाइप ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी विल वैरी डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम. तो कौन से इकोसिस्टम में है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसा बनेगा. क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर अ डेजर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. डेजर्ट का क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैक्टस या श्रब्स होते हैं, whereas रेन फॉरेस्ट का क्लाइमैक्स कम्युनिटी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है. बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन एंड विद द क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो हर तरह का सक्सेशन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे आके खत्म हो जाता है. ना अब देखते हैं कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स किसको बोलते हैं. A catastrophic climax is a climax community maintained or formed due to repeated natural disasters such as wildfires, floods, volcanic eruptions or cyclones, which prevent succession from reaching the climatic climax. तो आपको ये सब एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या कोई कैटास्ट्रोफी होता है, जैसे कि वाइल्ड फायर, जंगल में आग लग जाना, फ्लड्स और वोल्केनिक इरप्शंस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स कम्युनिटी का जो नेचुरल डिजास्टर से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है ऑफ द फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट में आग लग गई जो पहले ही एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी थी, उसमें सब आग लग गया एंड वहाँ से जो सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स. जब पायनियर स्पीशीज आते हैं, फायरवुड या फायर रेजिस्टेंट टाइप्स आते हैं, फिर ग्रासेस एंड पेरेनियल्स, फिर श्रब्स एंड मैच्योर वुड जब बनता है, इस टाइप के प्रोग्रेशन को कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स बोलते हैं. सो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है. आई हैव प्रोवाइडेड यू विद दिस टेबल विच डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी बाय द डेफिनेशन, व्हाट इज देयर कॉज एंड एग्जाम्पल्स. सो क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स किसको बोलेंगे? व्हाट इज अ क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स? वेयर द फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय द क्लाइमेट. क्लाइमेट के ऊपर जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी का टाइप निर्भर है, देन उसको क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स बोलेंगे. एंड मेन कॉज, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. ये जो क्लाइमेट के फैक्टर्स होते हैं, जब ये कंट्रोल करते हैं कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या बनेगा, देन इसको क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टुंड्रा में, जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टुंड्रा में कॉलोनाइजेशन होता है, देन क्लाइमेट या टेम्परेचर, रेनफॉल के अनुसार क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिसाइड होता है. Now what is an edaphic climax? Climax controlled by soil conditions rather than the climate. So edaphic climax में climate condition नहीं कंट्रोल करते हैं, बल्कि soil का condition, जो मिट्टी है उसका टाइप डिटरमाइन करता है कि क्या क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनेगा. सच एज सॉइल मॉइस्चर, पीएच एंड सैलिनिटी. उसका पीएच क्या है, मिट्टी का सॉइल मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है, क्या एसिडिटी है उसकी, क्या मिनरल कॉम्पोजिशन है, उससे पता चलता है कि कौन सा क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहाँ पर आएगा. सच एज मैंग्रोव कम्युनिटी. मैंग्रोव फॉरेस्ट में हमेशा वाटर की सलाइनिटी एंड हाइड्रेशन के ऊपर, पीएच के ऊपर एंड सॉइल का कॉम्पोजिशन के ऊपर, कितना मडी है सॉइल या कितना कीचड़ जितना है, तो वहाँ पर मैंग्रोव्स आते हैं. दैट इज कॉल्ड एन एडाफिक क्लाइमैक्स. नाउ व्हाट इज अ डिस्क क्लाइमैक्स? डिस्क क्लाइमैक्स का डेफिनेशन बताता है कम्युनिटी मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूस ह्यूमन इंटरफियरेंस. जब ह्यूमन का इंटरफियरेंस होके क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिसाइड होता है, देन उसको डिस्क क्लाइमैक्स बोलते हैं. सो ऑल दोज पीपल हु हैव आंसर्ड ऑप्शन सी, यू नीड टू नोट हियर दैट व्हेनेवर देयर इज ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरैक्शन जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी को शेप करता है और ह्यूमन इंटरफेरेंस becomes the deciding factor for climax community, then that is called disc climax. For main cause क्या होता है? grazing, deforestation, farming, agricultural practices. इन सब से जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी शेप होता है, देन उसको बोलते हैं डिस्क क्लाइमैक्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग. सो ग्रासलैंड का जब फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, वो ग्रासेस इसीलिए हैं क्योंकि लोग उनमें ग्रेजिंग करते हैं, लोग उनमें अपना कैटल को ग्रेजिंग कराते हैं. एंड द फाइनल वन विच इज द कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मेंटेन्ड बाय रिपीटेड नेचुरल डिजास्टर्स. ऐसी जगह जहाँ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वहाँ पर सच एज फायर, फ्लड एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, देन उस जगह पे जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनता है, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स. आई होप एवरीवन इज क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था.
मेरी आशा है कि आप लोग डेफिनेशन से अभी लर्न कर गए हैं एंड एग्जाम्पल से कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमैक्स हैं और उनमें किस कैटेगरी में हम सेग्रीगेट कर सकते हैं या कैरेक्टराइज कर सकते हैं. ओके, आई ऑलरेडी सी लॉट्स ऑफ लाइक्स एंड थम्स अप. वेरी नाइस. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर टू द स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय डैश्ड. कौन से फॉर्मूला से हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दर्शा सकते हैं? ऑप्शन ए APAR अपार प्लस LUE, ऑप्शन बी अपार मल्टीप्लाइड बाय LUE, ऑप्शन सी अपार माइनस LUE और ऑप्शन डी अपार डिवाइडेड बाय LUE. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है एंड कौन सा फॉर्मूला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दर्शाता है? और अपार एंड LUE का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप आंसर दे चुके होंगे. ओके, लेट अस टेक 30 seconds to guess to find out what is the correct answer. All the participants please post your answers in the chat box. मैं chat box को regularly follow करूँगा आपके answers को देखने के लिए या पढ़ने के लिए. ओके, आई कैन ऑलरेडी सी लॉट ऑफ आंसर्स इन द चैट बॉक्स. मुझे चैट बॉक्स में काफ़ी आंसर्स दिख रहे हैं. सुप्रिया, साक्षी, सायली, प्रतीक्षा, श्रेयसी, प्रेरणा, गौरी, प्राची, निरंजन, अंकिता, किरण, दीक्षा, अमृता, तेजश्री, तनेशा, अथर्व, लॉट्स ऑफ पीपल, पृथ्वीराज, विनय, अनुजा, मृणल, दर्शिनी, साई. वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं. अनुराग हैज़ ऑल्सो आंसर्ड. सब लोग काइंड ऑफ एक ही आंसर पे आ गए हैं विच इज़ ऑप्शन बी. देन लेट अस सी व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. देखते हैं कि कौन सा सही जवाब है. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय ऑप्शन बी अपार मल्टीप्लाइड बाय LUE. ना APAR एंड LUE का मल्टीप्लिकेशन बताता है कि ये होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, वेरी गुड, आप लोगों ने सब सही जवाब दिया है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ let us understand what is net primary productivity, what is APAR and what is LUE or LUE, APAR and LUE. Net primary productivity किसे कहते हैं या what is NPP? Net primary productivity is the rate at which plants store energy as organic matter after subtracting respiratory losses. मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो इस टर्म को 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक फॉरेस्ट या एक प्लांट का कितना प्रोडक्टिविटी है, मतलब कितना एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है. एंड नेट क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना है उसका. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिटरमाइंड बाय फोटोसिंथेसिस, कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है उतना एनर्जी स्टोर कर रहा है. और ऑर्गेनिक मैटर मतलब ग्लूकोज, तो कितना ग्लूकोज या फोटोसिंथेसिस वो अपने आप में स्टोर कर रहा है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग रेस्पिरेटरी लॉस. और उसको करने में जितना एनर्जी खर्चा हो रहा है थ्रू रेस्पिरेशन, उसको अगर माइनस कर दें तो जो बचेगा दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट प्लांट. इज द रेट एट विच ग्रीन प्लांट स्टोर एनर्जी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग रेस्पिरेटरी लॉसेस. एक और मिला जुला टर्म है विच इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. उसका मतलब क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल रेट एट विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो इन दोनों को कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे पहले. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल, मतलब अगर आप एक ठेला वाला या बिजनेसमैन का देखें तो दिन भर में उसका कितना सेल हुआ है, टोटल जितना सेल हुआ है दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और GPP. एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बोलता है? वो सेल तो हुआ है बट उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, सेल करने का इंग्रेडिएंट्स का खर्चा वगैरह सब माइनस करके जो आता है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो GPP एंड NPP, टू डिफरेंट टर्म्स. एंड हाउ आर द रिलेटेड? जब सोलर एनर्जी आती है एंड प्लांट उसको एसिमुलेट करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं GPP. टोटल सेल कितना हुआ दैट इज GPP. उसमें से काम करने में या उतना ही काम करने में उसका एनर्जी लॉस होता है, मेनली लॉस टू द एनवायरनमेंट एज हीट, जो R बोलते हैं विच इज़ अ रेस्पिरेशन लॉस. एंड देन बायोमास में एनर्जी स्टोर हो जाता है. प्लांट ने जो बायोमास एक्यूमुलेट किया है
that is directly proportional to the energy that plant has accumulated. So NPP को हम लिख सकते हैं, NPP is equal to ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस द रेस्पिरेटरी लॉसेस. एंड यही NPP आगे फूड चेन में या ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए मिलता है या एनर्जी सप्लाई करता है, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी, उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और बाकी एनिमल्स को कंज्यूमर्स बोलते हैं. तो एनिमल्स जो बायोमास खाते हैं दैट इज द NPP. NPP रिप्रेजेंट्स द एनर्जी दैट कैन बी पास्ड ऑन टू प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है, अब ये समझ गए कि GPP एंड NPP क्या है. अब समझते हैं APAR और LUE क्या है. तो ये है फॉर्मूला जिस पे हम सब ने एग्री किया है. दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. NPP इज इक्वल टू APAR इंटू LUE या मल्टीप्लीकेशन LUE. नाउ APAR क्या है? APAR is the amount of photosynthetically active radiation. Amount of photosynthetically active radiation, APAR, which is 400 to 700 nanometer actually absorbed by plants for photosynthesis. कि कितना सोलर एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड APAR. मतलब इस फिगर में अगर मैं दिखाऊं तो ये जो लाइन्स है कितना सोलर एनर्जी ये लोग एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उसको बोलते हैं APAR, अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. और LUE का तो क्या होता है? LUE इज द एफिशिएंसी विथ विच प्लांट्स कन्वर्ट द एब्जॉर्ब्ड लाइट इनटू बायोमास. LUE है एफिशिएंसी, लाइट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी. LUE इजी टू रिमेंबर, काफ़ी आसान है. लाइट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंटली उस एब्जॉर्ब्ड सनलाइट को वो बायोमास में कन्वर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं LUE. सो इसीलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला भी है कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय कितना उसको एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहा है. सो वही चीज़ यहाँ भी हम देखने को मिल रहा है कि एब्जॉर्ब्ड फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन या अमाउंट कितना एक्टिव रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑटोट्रॉफिक रेस्पिरेशन माइनस लॉस जो कर रहा है, वो दोनों हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का दो फार्मूला देते हैं. एक है NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R, ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला है NPP इज इक्वल टू APAR विच इज एब्जॉर्ब्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इनटू लाइट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू बायोमास. ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर टू द स्टूडेंट्स. इट्स वंडरफुल दैट यू हैव ऑल आंसर्ड वेरी करेक्टली. If yes, then let me know with a thumbs up or a yes in the chat box. आप मुझे thumbs up देके बता सकते हैं कि आपको समझ में आ गया. Then we will move on to the next question. Very nice. Okay, moving on to the next question. Question number 7. Practical application of scientific, technical and economic principles of forestry comes under which branch of forestry? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन का क्वेश्चन है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री कम्स अंडर विच ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री? ऑप्शन ए फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी फॉरेस्ट मेंसुरेशन, ऑप्शन डी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन. क्या वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है या फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स या फॉरेस्ट मेंसुरेशन या फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बोलते हैं? Let us take 30 seconds to look at what people have answered in the chat box. तब तक आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं. और कोई भी अगर डाउट है प्रीवियस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में या आगे अगर कुछ इन लेक्चर्स के अंदर आप कुछ समझना चाहते हैं देन आप मुझे पूछ सकते हैं. यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स एट द एंड ऑफ द क्लास. अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी डाउट यहीं सॉल्व कर दूँ. अगर मैं नहीं कर पाऊँगा देन नेक्स्ट क्लास में पक्का उसके बारे में पढ़ के आपको ज़रूर बताऊँगा. Okay, now let us focus on this question. Practical application of scientific, technical and economic principles of forestry comes under which branch of forestry? Okay, I can see lot of people who have mentioned their answers in the comment box. इतने सारे आंसर्स हैं. निरंजन, सुप्रिया, प्राची, सायली, किरण, सब लोग ए बोल रहे हैं, ऑप्शन ए. प्रेरणा, गौरी, साक्षी, प्रतीक्षा, प्रणव, श्रेयसी, अंकिता, अनुराग, विनय, म्यूजिकल बीस्टी, ओके, यश, अनुजा, ओम, प्रिया.
ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी नाइस। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इसका क्या सही जवाब है। सही जवाब इज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से आप लोगों ने एकदम सही आंसर किया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री इज नोन एज फॉरेस्ट मैनेजमेंट। काफ़ी मुश्किल नहीं है इसको समझना, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। Forest management is the practical application of scientific, technical, economic principles to the establishment, development, conservation and utilization of forest in a sustainable way. ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो बनाया है वो हमने अपने लिए बनाया है, ताकि ऐसा क्या साइंटिफिक, टेक्निकल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल लगाएं जैसे सस्टेनेबल वे में हम फॉरेस्ट को यूटिलाइज कर सकें अपने लिए, फॉर डेवलपमेंट, उनको कंजर्व करना, उनसे सारा रिसोर्सेज डिराइव करना इन अ सस्टेनेबल वे, उनको ख़त्म ना करते हुए, उनको ज़्यादा हानि ना पहुंचाते हुए, हमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक जैसे फ़ायदा होगा वो सब एक्यूमुलेट करके जो हम मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या लगते हैं, व्हाट आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व? हम इकोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम सिल्वीकल्चर का यूज़ करते हैं, विच वी जस्ट एनकाउंटर्ड इन अ प्रीवियस क्वेश्चन। हमने जब सिल्विक्स एंड सिल्वीकल्चर के बारे में पढ़ा, तब हमने पढ़ा कि ये सब प्लांट का एज नॉलेज, उसका न्यूट्रिशन टाइप, उसका हैबिटेट, ये सब का नॉलेज हम एप्लीकेशन जब करते हैं वो उसमें हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? प्लांटिंग कर सकते हैं, थिनिंग कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कि कब किस क्रॉप प्लांट को हार्वेस्ट करना है, कब किसको प्लांट करना है, किसका पॉपुलेशन को थिन करना है, कौन ज़्यादा इन्वेजिव हो रहा है उसको रोकना है, ये सब कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, यील्ड कैसे सस्टेन करना है, किसको कितना उसका प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उसको एप्लीकेशन के हिसाब से ग्रो करना है। If a plant has a better economy, we would prefer to grow more of that plant in the habitat or the area. And all of these integrated and applied together in forest management. ये सब साथ मिलके forest management होता है। So sustainable forest management में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं? Forest ecosystem vitality and health, कि forest अपने आप को कैसे maintain कर रहा है, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कितना कर रहा है, what is the amount of carbon it is trapping in as a forest, which is a very good thing which humans need, because the amount of carbon it traps will also supply food to the consumers and continue the food chain. आगे organisms को, consumers को वो food देगा। Productive functions, उसको कितना productivity हो रहा है, biodiversity कितना है, what are the different kinds of species and plants a forest can support, climate regulation कैसे करता है। हमने बहुत बार न्यूज़ एंड ये सब में एंड साइंस में भी पढ़ा है कि फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है एंड ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, वो क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है, उनमें बारिश कराता है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या है, एंड देन लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। आई होप दिस वॉज एन ईजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ये सबको समझ में आया? If yes, then tell me with a like or a yes in the chat box and we can move ahead in the question. क्योंकि हम क्लास के एंड की तरफ भी आ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ताकि किसी को कोई भी क्वेश्चन अगर दोबारा समझना है, आई विल बी एबल टू डू दैट। ओके, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन बोरॉन इज डैश्ड। प्लांट न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में बोरॉन को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, ऑप्शन बी माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऑप्शन सी प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ऑप्शन डी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। इनमें से किस कैटेगरी में बोरॉन को रखा जाएगा प्लांट का न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम सोचे तो? इजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ओके, लेट अस टेक 30 सेकेंड्स और मिनट टू कलेक्ट ऑल द आंसर्स। आप लोग अपना आंसर्स चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको पढ़ूंगा। 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद मैं सही सही आंसर आपको बता दूंगा। I can see many answers in the chat box.
मुझे अभी भी बहुत सारे आंसर्स दिख रहे हैं. लेट अस चेक व्हाट हैव पीपल आंसर्ड. Oh, lots of answers. Saili, Kiran, Supriya, Gauri, Pratiksha, Sakshi, Prachi, Niranjan, Shreyashi. All have answered option B. Okay. Prerna, Pranav, Anisha, Vinay, Diksha, Ankita, Anuja, Sai. Okay. सब लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं. देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन बोरॉन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. वेरी गुड. ये सब आप लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं. 8 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बोरॉन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट न्यूट्रिशन. So let us understand what is a macronutrient and what is a micronutrient, what is a primary and what is a secondary nutrient. इन सब टर्म्स का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल वी गेट क्लियर्ड व्हाट इज अ माइक्रो एंड अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. ओके. So macronutrients are nutrients required by plants in large amounts for normal growth and development. ठीक है. मैक्रो माइक्रो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. कितना प्लांट की ज़रूरत है. प्लांट को जो एलिमेंट्स लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत है फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको बोलते हैं मैक्रो. इसका बहुत बहुत भर भर के उनको ज़रूरत है. हमेशा उनको खाने में चाहिए. टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स. प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम. एंड इसी मैक्रोन्यूट्रिएंट में दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब इनके बगैर नहीं हो सकता. द प्लांट कैन नॉट grow without these are like essential. These need to be present in the plant nutrition menu. Nitrogen, phosphorus, potassium, three most important macronutrients. Secondary macronutrients calcium, magnesium and sulfur. ये भी important है but primary हमेशा nitrogen, phosphorus and potassium रहेगा. बट कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर भी लार्ज क्वांटिटीज़ में प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. इसीलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. नाउ हियर इज़ अ schematic showing the basic nutrients, the macronutrients and the micronutrients. Basic nutrients होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which are the building blocks of all the sugars, chemical. हमारे सेल्स में एंड प्लांट सेल्स में एक एक चीज़ C, H and O से बनी है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है NPK which are primary and calcium, magnesium and sulfur which are secondary. And micronutrients are the nutrients required in very small amounts or trace amounts but are essential for plant growth. इनकी ज़रूरत बहुत कम है बट बहुत ज़रूरी है. इनके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती बट अमाउंट जो इनका चाहिए दैट इज़ कम, वो बहुत कम होता है. So the amounts that plant use or require of these nutrients are small. That is why they are known as micronutrients. For example, iron, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum and chlorine. ये सब एग्जाम्पल है. सिलिकॉन और कोबाल्ट भी आता है. आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन ये मेजर एग्जाम्पल्स हैं. सिलिकॉन और कोबाल्ट भी कहीं कहीं चाहिए होता है. जैसे कि सिलिकॉन एंड कोबाल्ट बहुत सारे एंजाइम्स में ज़रूरत होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं एंड एंजाइम्स के को फैक्टर्स भी होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो हियर कम्स आवर प्लेयर विच इज़ बोरॉन. बोरॉन इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. वो प्लांट के ग्रोथ में चाहिए ज़रूर बट बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं. नाउ हियर इज़ अ स्कीमेटिक, वेरी लॉन्ग एंड एलाबोरेट स्कीमेटिक जो हमें बताता है कि कौन से न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन है या उसका उपयोगिता क्या है, इस न्यूट्रिएंट का क्या रोल है प्लांट डेवलपमेंट में. पोटाशियम इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड लो टेम्परेचर. फॉस्फोरस प्लेस अ मेजर रोल इन कैप्चरिंग सन्स एनर्जी. ये सब ये है. मैं आपको बोरॉन की तरफ दिखाना चाहता हूँ कि बोरॉन क्या करता है. बोरॉन यहाँ है. बोरॉन हेल्प्स इन रैपिड सेल वॉल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ. तो सेल वॉल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ में बोरॉन की ज़रूरत है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो बेसिक एलिमेंट्स हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम जो कि है प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम विच आर सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, निकल, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन ये सब आते हैं और इन सब का एप्लीकेशन यहाँ मैंने ऐड कर दिया है. मैं एक एक को नहीं पढ़ने वाला हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन रेफर टू दिस स्लाइड्स. बट बोरॉन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन रैपिड सेल वॉल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ. ओके, everyone has answered this correctly. I hope everyone has understood what is a macronutrient, what is a micronutrient, what are primary and secondary macronutrients. If yes, then let me know in the chat box or with a like. अगर आपको समझ में आया then like करिए
एंड हम आगे बढ़ेंगे विद टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी नाइस, थैंक यू. Coming on to the next question, question number 9. Which of these is not a characteristic of pioneer species? Which of these is not a characteristic of pioneer species? Pioneer species में इनमें से कौन सा एक characteristic नहीं हो सकता है? Option A, ability to grow on bare rocks. Option B, ability to tolerate extreme temperatures. Option C, large size. Option D, short lifespan. इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पाइनियर स्पीशीज का नहीं होता है? बेयर रॉक्स पे ग्रो करने की एबिलिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर में ग्रो करने की एबिलिटी, बड़ा बड़ा आकार या लार्ज साइज, और शॉर्ट लाइफ स्पैन, जल्दी जल्दी ग्रो करना और मर जाना. लाइफ स्पैन उनका छोटा है या फिर साइज उनका बड़ा है. रॉक्स पे ग्रो कर सकते हैं या एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं. Let us take a time of 30 seconds to come back to this question. तब मैं आपको सही आंसर बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा सही ऑप्शन है. I think many people have already answered. I can see it in the chat box. किरण, सुप्रिया, गौरी, प्रतीक्षा, श्रेयसी, प्रणव, वेरी नाइस. सब लोग सी ऑप्शन को बोल रहे हैं. साक्षी, प्राची, अंकिता, निरंजन, दीक्षा, प्रिया, प्रेरणा, तेजश्री, विनय, यश, मृणल, अनीशा, रोहन, वेरी नाइस. आप लोग का सबका पार्टिसिपेशन देख के अच्छा लग रहा है. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Which of these is not a characteristic of a pioneer species? Correct answer is option C. Large size is not a characteristic of a pioneer species. Pioneer species का large size होना एक characteristic नहीं है. बल्कि जो बाकी तीन बचे हैं, which is ability to grow on bare rocks, ability to tolerate extreme temperatures and short lifespan, ये actually एकदम characteristic है for pioneer species. Large size is a characteristic of the climax species, not the pioneer species. Okay, देखते हैं कि उन pioneer species क्या होते हैं. What is a pioneer species and उनके क्या characteristics हो सकते हैं. A pioneer species are the first organisms to colonize a bare or disturbed area during ecological succession. जब ecological succession में एक bare या disturbed area को जो species सबसे पहले आता है, उसको बोलते हैं pioneer species, because it is pioneering the ecological succession. Pioneer species are the first organisms that colonize barren environments and disrupted ecosystem. जो ecosystem एकदम बर्बाद हो चुका है या जिसमें कोई लाइफ नहीं है, वहाँ जो स्पीशीज सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं पायनियर स्पीशीज. सच एज बेयर रॉक में जो आता है, जैसे बैक्टीरिया, लाइकेंस, स्मॉल एनुअल प्लांट्स, ग्रासेस, फायरवुड, ये सब फायर प्लांट्स, ये सब होते हैं पायनियर स्पीशीज. उनके एग्जाम्पल्स हैं लाइकेंस आर गुड पायनियर स्पीशीज, मॉसेस भी हैं, फायर वीड करके एक प्लांट है जो फायर रेजिस्टेंट होता है, जो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स के बाद पायनियर बनता है, यंग एल्डर ट्रीज, दीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पायनियर स्पीशीज. Now what is a characteristic of a pioneer species? Pioneer species are specially adapted to colonize bare or disturbed habitats. उनमें वो खास कैरेक्टरिस्टिक होता है जो बेयर हैबिटाट्स को भी कॉलोनाइज कर सकता है, जैसे कि हार्डी एंड स्ट्रेस टॉलरेंट, कैन सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राउट एंड पुअर न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, चाहे पानी का कमी हो, ड्राउट या एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ऑप्शन में भी था. सिंपल स्ट्रक्चर, स्मॉल, नॉन वुडी एंड लो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी. स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, उनमें ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता है, दे आर नॉट थिक, दे आर नॉट टॉल, दे आर नॉन वुडी, उनमें ज़्यादा वुड नहीं होता है, एंड स्मॉल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ग्रो करने के लिए ईजी होता है. रैपिड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन उनका छोटा होता है, लाइफ साइकिल बहुत जल्दी ख़त्म होता है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स. वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं एंड एरिया को कॉलोनाइज कर देते हैं. हाई डिस्पर्सल एबिलिटी, बहुत दूर दूर तक अपना स्पोर्स एंड सीड्स डिस्पर्स कर सकते हैं, ताकि नॉट जस्ट एक एरिया, आसपास के सारे एरियाज में भी अपना प्रोजेनी या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. स्पोर्स और सीड्स इजीली स्प्रेड बाय विंड और वाटर.
लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट पे भी देखा, अगर न्यूट्रिएंट का ज़्यादा कमी भी हो जाए तो भी ये ग्रो कर सकते हैं, कैन ग्रो ऑन बेयर रॉक, सैंड और न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, जहाँ पे कोई वो की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत नहीं है. इनिशिएट सॉइल फॉर्मेशन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. दे एक्यूमुलेट ऑर्गेनिक मैटर एंड हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक. रॉक को एंजाइम्स और एसिड्स सीक्रेट करके वो रॉक को सॉइल बनाने में मदद करते हैं. मॉडिफाई द एनवायरनमेंट, मॉइस्चर रिटेन करते हैं. दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं. एंड शेड फॉर लेटर स्पीशीज. दे आर शॉर्ट लिव्ड, eventually replaced by more competitive species, which are the climax community. So these are the characteristics of a pioneer species. They are stress tolerant, they are simple, not large sized, small, rapid growth and reproduction ability, low nutrient requirement, initiate soil formation and are short lived. Understood? सबको समझ में आया? I hope आप सबको easy हो रहा है समझने में. If yes, then give me a like or a yes in the chat box. Then we will move on to the last question of this session. Very nice. So last question of this problem solving session, number 10. यहाँ पर एक example दिया गया है. The climax near Tinni village is being controlled by disturbance by cattle. This is an example of dash. ये बेहद ही easy question होगा अगर आपने पहले के कुछ questions में से similar ही हमने एक concept को कवर किया है कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी के कितने टाइप्स होते हैं. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन जो पूछ रहा है. द क्लाइमैक्स नियर अ विलेज इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कैटल डिस्टर्बेंस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश. ऑप्शन ए क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी एडाफिक क्लाइमैक्स, ऑप्शन सी डिसक्लाइमैक्स और ऑप्शन डी कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स. इसको कौन से कैटेगरी में हम डालेंगे? कैटल के डिस्टर्बेंस से हो रहा है क्लाइमैक्स कम्युनिटी. Let us take 30 seconds to find out what is the correct answer. मुझे अभी से आंसर्स आने दिखने लगे हैं. There are many people who have answered. साइली, रोहन, सुप्रिया, प्रतीक्षा, गौरी, निरंजन, किरण, साक्षी, अंकिता, प्राची, तेजश्री, यश, श्रेयसी, विनय, दीक्षा, प्रिया, प्रणव, मृणल, तनीषा. वेरी नाइस. सब लोगों ने ऑप्शन सी को बोला है. आई थिंक आप लोग सब समझ गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से. जो कन्फ्यूजन तब हो रहा था अभी नहीं हो रहा है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड आई एम नॉट सरप्राइज टू टेल यू दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसक्लाइमैक्स कम्युनिटी which is affected by disturbance by cattle grazing. So grazing by cattle is a biotic disturbance or a living human का interference है इसमें. It is continuous and regular. It alters natural succession, maintains an artificially stable community which is grassland. तो कैटल की ग्रेजिंग से पायनियर कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या बन जाता है? ग्रासलैंड बन जाता है, क्योंकि कैटल को ग्रास चाहिए और उसके आगे वो नहीं बढ़ पाता है. So these kind of human or biotic interference is called disclimax. Therefore climax controlled by cattle near a village is disclimax. जैसे कि ये एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, कैटल जहाँ पे ग्रेज कर रही है उस एरिया का क्लाइमैक्स कम्युनिटी घास हो गया है, बट जस्ट उसके पीछे बड़े बड़े ट्रीज हैं, विच इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी देयर. A disclimax is a stable community maintained by continuous biotic interference, especially human or domestic animal activities, which prevents the ecosystem from reaching its natural climatic climax. तो इस एरिया में बड़े पेड़ क्यों नहीं हैं? क्योंकि कैटल का ग्रेजिंग से उसका क्लाइमैक्स कम्युनिटी चेंज हो गया है, अफेक्ट होकर, और ग्रास बन गया है, जबकि नेचुरल उसका क्लाइमैक्स कम्युनिटी हार्ड वुडेड ट्रीज था, बड़ा बड़ा पेड़ अब नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ डिसक्लाइमैक्स. ओके, easy to understand. I hope everyone is clear with this question. Very nice. With this we have come to the end of this problem solving session. मैं presentation अपना बंद कर रहा हूँ and I'll come back to the class here. Okay, I hope everyone enjoyed the class. I enjoyed thoroughly. Thank you for participating in the class. आपको सब स्लाइड समझ में आए? आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. Someone was asking to repeat a question. If that is so, अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट पे सुनना है या फिर एक्सप्लेनेशन सुनना है, देन वो भी मैं कर सकता हूँ. बट आई थिंक आई वॉज गोइंग इन मैं काफ़ी स्लो भी जा रहा था एंड काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ आपको कोशिश कर रहा था, सो दैट ऑल ऑफ यू गाइज अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स. दीज आर वेरी बेसिक एंड ईजी कॉन्सेप्ट्स. ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए.
go through our lectures and attend these problem solving classes. It is open for all, it is not a compulsory. There is another TA for this course जिनका क्लास पता नहीं मुझे कब होता है, बट गौरी हैं वो, उनका क्लास भी आप अटेंड करिए. विच एवर यू फाइंड बेटर, और यू अटेंड बोथ दीज क्लासेस एंड देन गिव मी योर फीडबैक. आपको कैसा लगा क्लासेस, एंड all this video and the presentation or the classes that I am conducting right now is a recorded video. This video will be uploaded on YouTube and the recordings of this class will be available to you. NPTEL आपको share करेंगे, ये पूरा recorded class है. And the material, the slides that I have made for you guys, example questions, these slides will also be shared to you in a drive folder. तो आपको slides और ये class के recording दोनों मिलने वाले हैं. So you can anytime refer back to these problem solving sessions to clear your doubts. और आप लाइवली मुझे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे आपने आज किया. और any problem you want me to change the language, you want me to allow you to speak, you want me to change the number of questions, you want me to revisit the question, I will do it for you. I'm happily engaging here. Okay, I hope everyone liked the class. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं if you were able to understand all these questions. आई गेस किसी को अगर कोई डाउट अभी नहीं आ रहा है, देन प्रिपेयर सम क्वेश्चंस फॉर मी इन द नेक्स्ट क्लास. सो वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे एट 3 PM और 3:30 PM. 1-1.5 घंटे का क्लास हम करेंगे, बिकॉज 10 क्वेश्चंस ब्रीफली सॉल्व करने में उतना ही टाइम लगता है. 2 घंटे के लिए हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट देन आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एवरी वन टू यू नो. देन आप अगर समझ जाओगे देन यू नीड नॉट मेमोराइज, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेशन एंड आई विल बी द पॉइंट ऑफ लाइव कॉन्टैक्ट फॉर यू गाइज. ओके गाइज, इफ़ यू हैव नो क्वेश्चन, आई होप यू लाइक दिस क्लास. आई विल एंड दिस कॉल, मैं कॉल को एंड कर रहा हूँ. सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट 3 to 5 PM विथ लेक्चर वीक 3. आप सब अपना लेक्चर्स पढ़ के आइए for the recorded lectures, and we will have a fun problem solving session at Saturday 5 PM to 3 PM to 5 PM. Okay, bye bye, I'll end this call. Thank you for joining.